Hello, welcome to BioBlitz Brilliance. Today the topic which we are going to study is a sensory organ, that is ear. In the previous lecture we have studied about the eye. So whenever we listen the word ear, we know that कि चलो हाँ कान एक ही पार्ट है, अंदर का पार्ट कैसा क्या होगा, इसके बारे में हमें क्यूरियोसिटी होती है. So today I am over here to clear your curiosity that what exactly the ear is from the inside. So starting from the ear, as we all know, ear is basically a paired structure. In another word, ear is also known as pinna. So ear is basically a paired structure. It is made up of three parts, that is external ear, middle ear and internal ear. When we come to an origin, it means the human is a triploblastic animal made up of ectoderm, mesoderm and endoderm. So from all the three layers the ear is made up of. Therefore we are known as triploblastic animal. So when we talk about the origin of the ear, it is basically made up of three layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm. Now we will be studying the complete diagram and complete structure of the external ear, middle ear and internal ear. So coming on to this structure is basically of external ear, this structure is basically of middle ear, and from ear to ear this structure is of internal ear. Let's start with the structure of external ear. When you talk about external ear, this external structure which is outside, which we can see, is known as pinna. That is known as external ear. Now this pinna is made up of elastic cartilage. Now what is cartilage? The cartilage is basically a substance which is very much elastic than bone. It means it can be bended, but the bone cannot be bended. It is because of the more amount of collagen fiber and elastin fibers. And the second most important point, due to the less ossification. Ossification means less deposition of calcium, phosphate and other things that makes the bone hard. Hence the cartilage can be bent, but the bone cannot. So this is made up of the elastic cartilage. On the elastic cartilage there is a layering of muscles, that is known as auricular muscles, and on the muscles there is a layering of skin, which you can see from externally, which is mentioned over here, covered with skin. So the external ear is made up of elastic cartilage. That cartilage is covered with auricular muscles, and from the above there is a layering of skin. So the innermost layer is of cartilage, second layer is of auricular muscle, and third layer is of skin. So this makes the complete external ear, which we can see from externally. Next, जब ये एक्सटर्नल ईयर अंदर के तरफ लीड करता है तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू लीड करता है. उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑडिटरी मीटर्स. क्या कहते हैं? ऑडिटरी मीटर्स. नाउ ऑडिटरी मीटर्स जो रहता है वो अंदर के तरफ कुछ सेल्स के लाइनिंग से लाइंड होता है. इन सेल्स को हम कहते हैं एक तरीके का सेरोमिनस ग्लैंड. ये जो स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं सेरोमिनस ग्लैंड. अब सेरोमिनस ग्लैंड होते क्या हैं? सेरोमिनस ग्लैंड एक तरीके के ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स या सेरोमिन या सेरोमिन जैसे चीज सीक्रेट करते हैं, जिनका कंसिस्टेंसी जो रहता है वो वैक्स लाइक होता है. अब इनका फंक्शन क्या होता है? कभी जब भी साउंड वेव के साथ डस्ट पार्टिकल्स हमारे ईयर्स में जाते हैं तो उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करके अंदर ना कर जाने देने के लिए वो चीज प्रिवेंट करता है. So this is the basically a function of the wax that is secreted by ceruminous gland. Now, where the external ear end, there is a membrane known as tympanic membrane. In other word, tympanic membrane is also known as eardrum, जिसे हम कहते हैं कान का पर्दा, basically in Hindi. So the external ear is basically composed of pinna, auditory meatus, tympanic membrane, and the glands which is present inside the auditory meatus. Now next thing, what does the external ear does? External ear simply performs the function of collecting the sound waves or the sound vibrations from the outside and then transporting it to the next part of ear, that is known as middle ear. So this was all about the external ear. Next we will be discussing about the middle ear. When the thing comes to middle ear, it is very much you can say mystery like thing, because the middle ear is basically composed of three bones: malleus, incus and stapes. As you can see, the name of all these bones is very much classic: malleus, incus and stapes. If the question is asked that which is the smallest bone inside the human body,
the name should come stapes. Stapes is the smallest bone inside our human body, and that too inside the ear. So whether we say malleus or incus or stapes, this all three are the bony structures jointed with each other, working all the three bones working alignment with each other. Now what does this do? When the sound is collected by external ear, the sound passes through the tympanic membrane, and from the tympanic membrane middle ear is connected. So the sound which comes in tympanic membrane passed on to the tympanic membrane over here. Now when the sound passes to the tympanic membrane, the vibrations create an effect on malleus. The malleus hit the the malleus hit the incus, and incus hit the stapes. So the vibration which is falling on the malleus, it hits down to the incus, so it transfers the vibration from malleus to the incus. When this incus receives the vibration, it hits to the stapes. So the vibration which is received by incus by the sound waves, it is transferred to the stapes. Now when the incus hit the stapes, the sound vibration is collected by the stapes. The sound vibration is collected by the stapes and then pass on to the next part, that is internal ear. Now the function of middle ear is basically to concentrate the sound which is coming from the external ear. इसका मतलब क्या होता है, बाहर से जो साउंड आता है वो बहुत ज्यादा वॉल्यूम में आता है, हमको वो क्लियरली सुनाई दे सके. एज यू कैन सी, दिस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो डायमीटर है बड़ा है और इस स्टेप्स का जो डायमीटर है वो बहुत छोटा है. तो वॉइसेस जब यहाँ से, साउंड वाइब्रेशन जब यहाँ से आता है तो हमें क्लियरली सुनाई दे सके अंदर. स्टेप्स क्या करता है, वॉइस को या साउंड को कॉन्सेंट्रेटेड करके अंदर भेजता है. सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द स्टेप्स, मेलियस एंड इनकस. अगर सिंपल में हम समझना चाहें तो मेलियस, इनकस, स्टेप्स का फंक्शन क्या होता है, ये तीनों एक साथ अलाइनमेंट में काम करते हैं. जब भी साउंड वाइब्रेशन हिट करता है मेलियस को, मेलियस हिट करता है इनकस को, इनकस हिट करता है स्टेप्स को. तो इस तरीके से जो साउंड वाइब्रेशन या वेव्स मेलियस के पास आता है वो हिट करने की वजह से जाता है इनकस के पास, एंड दैट साउंड वाइब्रेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड and transferred into the next part of ear, that is known as internal ear. Now the stapes which is connected to the next part of ear, that is internal ear, is through the window, this which is known as oval window. So the next part which we are going to study is about the internal ear. The next part is internal ear. Now internal ear is the innermost part of the ear. Let us see what is internal ear is made up of. Internal ear is made up of three semicircular canals which you can see over here. This lobed structures of all these canals, there is a presence of three lobed like structures which are known as ampulla, which we'll study further. This part which is known as sacculus, this part which is known as utriculi, and the most complicated circulated structure that is known as cochlea. So basically the internal ear is made up of following parts: three semicircular canals, utriculi, sacculus and cochlea, and the lobulated structure of all the three semicircular canals that are known as ampulla. Now inside the semicircular canals and the cochlea, a fluid is filled that is known as perilymph and endolymph. The lymph fluid which is perilymph and endolymph is used to pass on the vibrations carried by the sound to the internal ear, due to which the sound vibrations hit on the surface of basilar membrane, on their sensory hairs are present, and due to which a signal is passed on to the auditory center of brain, and जो आवाज हमको सुनाई देता है उसकी वजह से सुनाई देता है. This all process which I mentioned, which we'll be studying in detail. So moving on to the internal structure of cochlea, यानी cochlea का internal structure होता कैसे है. कॉक्लिया का इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम लोग पढ़ने जाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो डिटेल में पढ़ रहे हैं वो है कॉक्लिया का इंटरनल स्ट्रक्चर. कॉक्लिया का इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली तीन लेयर्स में, तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. अपर वन इज स्केला वेस्टिबुला, मिडल वन इज स्केला मीडिया, एंड द लोअर वन इज स्केला टिम्पैनी. अब ये तीनों पाइप या ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. इनको तीनों पार्ट्स में डिवाइड करते हैं दो मेम्ब्रेन्स. द फर्स्ट वन, द अपर मेम्ब्रेन इज रेजनस मेम्ब्रेन, एंड द लोअर मेम्ब्रेन इज basalier membrane.
ड्यू टू दी रेजनर मेम्ब्रेन एंड बेसिलियर मेम्ब्रेन। ये जो कैनाल्स होते हैं या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया एंड स्केला टिम्पैनी। इन सभी ट्यूब्स के अंदर फ्लूइड भरे होते हैं। इनसाइड द स्केला वेस्टिबुलाई, इनसाइड द स्केला टिम्पैनी पेरिलिम्फ फिल्ड होते हैं, और स्केला मीडिया के अंदर जो लिम्फ फ्लूइड होता है भरा होता है उसे हम एंडोलिम्फ कहते हैं। नाउ all this structure which is present from the outside, ये एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बोनी लैबिरिंथ, और अंदर से जो स्ट्रक्चर्स होता है जो डिवाइड करता है तीन पार्ट्स में उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ये जो स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन क्या होता है? दिस वन which is known as basiliar membrane. Why? Because basiliar membranes पे sensory hair-like structures होते हैं. The structures which you can see over here are the hair-like structures. इन hair-like structures का function क्या होता है? Basically, these hair-like structures are known as organs of corti. अब organs of corti क्या होते हैं? Organs of corti एक ऐसे structures होते हैं जो पास ऑन करते हैं साउंड वाइब्रेशन से रिसीव्ड वाले सिग्नल्स टू द ऑडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन। लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल द साउंड वेव्स कम ओवर हियर। साउंड वेव्स के जो वाइब्रेशन साउंड वेव्स जब यहां पे आते हैं तो पेरिलिम्फ में वाइब्रेशंस क्रिएट होता है। पेरिलिम्फ में वाइब्रेशंस जो क्रिएट होता है वो इस मेम्ब्रेन को हिट करेगा, द मेम्ब्रेन व्हिच इज ओवर हियर दैट इज नोन एज रेजनस मेम्ब्रेन। जब ये साउंड वाइब्रेशंस रेजनस मेम्ब्रेन को हिट करेगा तो रेजनल मेम्ब्रेन में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होगा, एंड ड्यू टू दैट वाइब्रेशंस वो वाइब्रेशंस जो है पास ऑन होंगे एंडोलिम्फ में। वाइब्रेशंस जब एंडोलिम्फ में पास ऑन होंगे तो एंडोलिम्फ भी वाइब्रेट करेगा। नाउ ड्यू टू द वाइब्रेशंस क्रिएटेड इन एंडोलिम्फ, ये जो तुम्हारे सेंसरी हेयर स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज बेसिलियर मेम्ब्रेन एंड दिस आर द ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। तो जैसे ही इनके ऊपर वाइब्रेशंस हिट करते हैं ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो बेसिलियर मेम्ब्रेन को हिट करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स तुम्हारे बेसिलियर मेम्ब्रेन को हिट करते हैं, ये स्ट्रक्चर्स तुम्हारे बेसिलियर मेम्ब्रेन को हिट करते हैं। तो जैसे ही ये ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई बेसिलियर मेम्ब्रेन को हिट करते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक तरीके का ऑडिटरी नर्व। ये ऑडिटरी नर्व एक तरीके जब भी ये ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई मेम्ब्रेन्स को हिट करते हैं दैट इज बेसिलियर मेम्ब्रेन, तो वो एक तरीके का एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। उसी एक्शन पोटेंशियल को ये ऑडिटरी नर्व लेके जाता है ऑडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन के पास। ऑडिटरी सेंटर ऑफ ब्रेन एनालाइज करता है और फिर सिग्नल भेजता है कि हाँ दिस इज द वर्ड और दिस इज द सेंटेंस और दिस इज द थिंग दैट यू हैव हर्ड। इन दिस वे द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग वर्क्स। तो यहाँ पे सबसे बेसिक स्ट्रक्चर जो है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो है वो है ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। So this was the internal structure. Now coming on to the semicircular canals. ये अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसे हम सेमीसर्कुलर कैनाल्स कहते हैं। सेमीसर्कुलर कैनाल्स के हर एक एंड जो है वो लोब्यूलेटेड है, यानी 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स 3 लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स। 3 लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स तो 3 एम्प्यूला प्रेजेंट होंगे। दैट्स व्हाई मेंशन ओवर हियर 3 एम्प्यूला 3 सेमीसर्कुलर 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स, उनके जो लोब्यूलेटेड पार्ट होंगे उसे हम एम्प्यूला कहेंगे। यहाँ पे 3 एम्प्यूलास प्रेजेंट होंगे। हर एक एम्प्यूला में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे। अगर 3 एम्प्यूलास है तो तीनों में एक सेंसरी हेयर लाइक सेंसरी स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे जिसे हम कहते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे जो रहता है वो बॉडी का डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल जब हम मूव करते हैं तो मूवमेंट के टाइम पे हमारे बॉडी का जो डायनामिक इक्विलिब्रियम या मूविंग इक्विलिब्रियम होता है उसमें बॉडी को बैलेंस करने में या बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में हेल्प करता है। आफ्टर द क्रिस्टे यहां पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सैक्युलाई। सैक्युलाई के अंदर एक सेंसरी स्पॉट होता है जिसे हम कहते हैं मैक्युला। मैक्युला के अंदर जो सेंसर मैक्युला बेसिकली एक तरीके का सेंसरी स्पॉट होता है जिसका काम होता है हेल्प्स टू मेंटेन द स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी का मतलब जब भी बॉडी हमारा रेस्ट कंडीशन पे होता है या नॉर्मल स्टेट पे होता है तो वो टाइम पे बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होता है वो मेंटेन करने में हेल्प करता है हमारा मैक्युला। सो दिस इज द एम्प्यूला लोब्यूलेटेड स्ट्रक्चर। इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टे। यहाँ पे जो सैक्युला है इसके अंदर प्रेजेंट होता है मैक्युला। क्रिस्टे बॉडी का इक्विलिब्रियम तब मेंटेन करने में हेल्प करता है जब बॉडी का मूवमेंट होता है, यानी बॉडी हमारा डायनेमिक स्टेट में होता है। एंड मैक्युला हेल्प्स टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी जब बॉडी हमारा रेस्ट कंडीशन पे होता है। नाउ
These three semicircular canals contain an otolith organ and semicircular. अब यहाँ पे जो semicircular canals उनमें otolith organ होते हैं. Otolith organ में आते क्या हैं? Utricula and sacula. This one is sacula and this structure इसे हम कहते हैं utricula. अब इन semicircular canals में, इन utricula में और इन सभी structures में जिसको हम cochlea कहते हैं, lymph fluid flow होता है जिसे हम endolymph या फिर पेरिलिम्फ कहते हैं, एंडोलिम्फ एंड पेरिलिम्फ कहते हैं. अभी यूट्रिक्युलाई, सैक्युलाई एंड सेमीसर्कुलर कैनाल्स, इन तीनों स्ट्रक्चर्स में दे आर फिल्ड विद फ्लूइड एंडोलिम्फ. व्हाई वी मेंशन इट एज एंडोलिम्फ? बिकॉज इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब, हेंस इट इज मेंशन्ड एज एंडोलिम्फ. जब भी हमारा बॉडी पोस्चर चेंज करता है, जब भी हमारा बॉडी पोस्चर चेंज करता है, तो वो टाइम पे हमारे जो बॉडी के अंदर के जो एंडोलिम्फ होते हैं ईयर के अंदर, बेसिकली वो सेंसिटाइज करते हैं कि हमारा बॉडी पोस्चर चेंज कर रहा है. तो पोस्चर जब भी हम चेंज करते हैं तो जो हमारे ईयर्स में एंडोलिम्फ होते हैं उनमें भी वाइब्रेशंस क्रिएट होता है या उनमें भी मूवमेंट्स होता है. वो मूवमेंट्स की वजह से एक सिग्नल जनरेट होता है जो जाता है हमारे बॉडी के ब्रेन के सेरिबेलम के पास. सेरिबेलम बताता है कि अगर हम घूम रहे हैं तो एंडोलिम्फ भी घूम रहा है, जिसकी वजह से बॉडी का इक्विलिब्रियम साथ साथ में मेंटेन करना है. इसका सिंपल एग्जांपल हम बोलते हैं, अगर हम कंटिन्यूसली रोटेशन मूवमेंट करते हैं तो एक टाइम पे आने के बाद अगर हम रेस्ट स्टेट पे आते हैं तो हमारा बॉडी घूमते रहता है. क्यों होता है? बिकॉज जब हम घूमते हैं तब हमारे ईयर के अंदर के जो एंडोलिम्फ होते हैं इंटरनल ईयर में, वो भी मूवमेंट करते हैं. और जब हम रुक जाते हैं तब कंटिन्यूसली तुम्हारा एंडोलिम्फ फिर भी मूवमेंट करते रहता है. इसी वजह से हमको चक्कर जैसा फील होता है. और जब हमारा एंडोलिम्फ रेस्ट स्टेट पे आता है तब हमारा बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है. तो इसीलिए कहते हैं जो ये एंडोलिम्फ होता है, इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद चेंज बॉडी पोस्चर. इट सेंड सिग्नल्स टू द सेंसरी सेल्स. जब भी हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा पोस्चर चेंज होता है. पोस्चर चेंज होने की वजह से एक सिग्नल जनरेट होता है और ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन लेके जाता है. सेंसरी सिग्नल किसके पास? सेरिबेलम के पास. सेरिबेलम दैट इज द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन. सेरिबेलम बॉडी का इक्विलिब्रियम वो हिसाब से मेंटेन करने में हेल्प करता है. यानी बॉडी जब आपका घूम रहा है तो एंडोलिम्फ भी घूम रहा है. बॉडी रेस्ट में आए फिर भी हमको चक्कर जैसा लगता है. क्यों? क्योंकि एंडोलिम्फ अभी तक वो मूव कर रहा है. जैसे ही एंडोलिम्फ रेस्ट पोजीशन पे आता है उसी हिसाब से हमारा बॉडी का इक्विलिब्रियम भी या बैलेंस मेंटेन होता है. So this was all about the external ear, internal ear, middle ear and internal ear and mechanism of hearing. If you have understood all the concept of this lecture, please do like, share, subscribe and watch the complete video for the full info according to the concept wise. So yeah, stay tuned for the next upcoming videos and thank you so much. Keep watching and keep subscribing. Thank you.